یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ عملی اقدامات سے بین الاقوامی تعلقات میں استحکام اور مثبت توانائی ڈالیں، صدر شی جن پنگ۔ چین کی میزبانی میں برکس ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس۔ پاکستانی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر چین تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 19 مئی کو صدر شی جن پنگ نے برکس وزراء خارجہ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے ورچوئل خطاب کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ بین الاقوامی برادری میں ایک مثبت، ترقی پسند اور تعمیری قوت کے طور پر برکس ممالک کو اپنے اعتقادات کو مضبوط کرنا چاہیے، طوفان کا سامنا کرنا چاہیے، عملی اقدامات کے ساتھ پرامن ترقی کو فروغ دینا چاہیے، شفافیت اور انصاف کو برقرار رکھنا چاہیے، جمہوریت اور آزادی کی حمایت کرنی چاہیے اور استحکام کو تقویت دینی چاہیے۔ ہنگامہ خیز اور تبدیلی کے دور میں بین الاقوامی تعلقات کو مثبت توانائی فراہم کرنی چاہیے۔ اپنے خطاب میں شی جن پنگ نے کہا کہ ابھرتی ہوئی مارکیٹ کے ممالک اور ترقی پذیر ممالک کے درمیان یکجہتی اور تعاون کی مضبوطی پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پانچوں ممالک کو چاہیے کہ وہ ابھرتی ہوئی مارکیٹ کے ممالک اور ترقی پذیر ممالک کے ساتھ بات چیت اور تبادلے کو فروغ دیں تاکہ تعاون کو مزید وسعت مل سکے اور ترقی کی طاقت مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے۔ 19 مئی کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی نے بیجنگ میں برکس ممالک کے وزراء خارجہ کے ورچوئل اجلاس کی میزبانی کی۔ اجلاس میں جنوبی افریقہ، برازیل، روس اور بھارتی وزراء خارجہ نے شرکت کی۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب سے صدر شی جن پنگ نے بھی ورچوئل خطاب کیا۔ وانگ یی نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے اپنے خطاب میں برکس وزراء خارجہ کے اجلاس کی اہمیت پر بات کی ہے، سلامتی اور ترقی جیسے 2 اہم مسائل پر گہرائی سے روشنی ڈالی اور برکس کے سیاسی اور سیکورٹی تعاون کو گہرا کرنے کے بارے میں اہم تجاویز پیش کیں۔ وانگ یی نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران برکس ممالک کے رہنماؤں کی حکمت عملی کی روشنی میں ہم نے مشترکہ تشویش کے اہم بین الاقوامی مسائل سے متعلق کثیر الجہتی پلیٹ فارمز پر ایک ساتھ بات کی اور پانچوں ممالک کے مشترکہ مفادات کا مضبوطی سے تحفظ کیا۔ وانگ یی نے کہا کہ رواں سال چین کی جانب سے برکس کی صدارت سنبھالنے کے بعد 50 سے زائد اہم سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبوں میں اہم پیش رفت کے حصول سے برکس تعاون کو فروغ دیا گیا اور 14ویں برکس رہنما اجلاس کی مضبوط بنیاد رکھی گئی۔ وانگ یی نے کہا کہ ہمیں اسٹریٹجک رابطے اور رابطہ سازی کو مزید مضبوط بنانا چاہیے، مختلف شعبوں میں باہمی سود مند تعاون کو مزید گہرا کرنا چاہیے اور مزید کھلے پن اور جامعیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شریک وزراء خارجہ نے صدر شی جن پنگ کے خطاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اس بات کی مکمل عکاسی ہے کہ چین برکس تعاون کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وزراء خارجہ نے کہا، دنیا اس وقت تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے اور برکس ممالک کے لیے یکجہتی اور تعاون کو مضبوط کرنا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ کثیر الجہتی کو برقرار رکھنے، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کو برقرار رکھنے، عالمی گورننس کے نظام میں اصلاحات کو فروغ دینے اور مزید منصفانہ، معقول اور جامع بین الاقوامی ڈھانچے کی تعمیر ضروری ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 20 تاریخ کو باقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی کی دعوت پر پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 21 سے 22 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وانگ وین بین نے کہا کہ بلاول کے بطور پاکستانی وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا سرکاری 2 طرفہ دورہ ہے۔ چینی فریق اس دورے کو پاکستانی فریق کے ساتھ روایتی دوستی کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے ایک موقع کے طور پر لینے کا منتظر ہے۔ چین اور روس کے درمیان تیل کی تجارت کے حوالے سے 20 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کی باقاعدہ پریس کانفرنس میں ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ چین اور روس نے ہمیشہ باہمی احترام، برابری اور باہمی فائدے کی بنیاد پر معمول کا اقتصادی اور تجارتی تعاون کیا ہے۔ وانگ وین بین نے زور دے کر کہا کہ یک طرفہ پابندیاں مسئلے کو حل کرنے میں مددگار نہیں ہوں گی۔
یہ خبریں آپ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے سماعت فرما رہے ہیں۔ چائنا کونسل برائے فروغ بین الاقوامی تجارت کے قیام کی 70ویں سالگرہ اور عالمی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کی سمٹ 18 سے 19 تاریخ تک بیجنگ میں منعقد ہوئی۔ چائنا کونسل برائے فروغ بین الاقوامی تجارت کے نائب چیئرمین چانگ شاؤگانگ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں چین نے اپنے کارپوریٹ جدت طرازی کے نظام کو مسلسل بہتر کیا ہے اور جامع جدت طرازی کی حمایت کے لیے بنیادی طور پر ایک ادارہ جاتی اور بنیادی فریم ورک قائم کیا ہے۔ اس وقت چین کامیابی سے اختراعی ممالک کی صف میں شامل ہو چکا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں چین کی قومی اختراعی صلاحیت کا جامع درجہ بندی انڈیکس دنیا میں 34ویں سے آج 12ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ ملک بھر میں R&D سرمایہ کاری میں 2.7 گنا کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ مجموعی GDP میں اس کا تناسب 2.44% تک پہنچ چکا ہے۔ اس موقع پر ذیلی فورم میں متعدد ممالک کی کاروباری شخصیات نے عالمی تعاون کو مضبوط بنانے اور عالمی ترقی میں ٹیکنالوجی اور جدت، گرین، کم کاربن اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 19 مئی کو تنازعات اور تحفظ خوراک سے متعلق امور کے حوالے سے کھلی بحث کی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے چانگ جون نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی قومی معیشت اور لوگوں کے معاش سے متعلق اولین ترجیح ہے۔ یہ بین الاقوامی برادری کو درینہ عرصے سے درپیش ایک بڑا چیلنج بھی ہے۔ کووڈ-19 کی وبا، شدید موسمی حالات، معاشی کساد بازاری اور جغرافیائی سیاسی تنازعات سمیت متعدد عوامل کے باعث اس وقت اناج کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ رسد اور طلب میں عدم توازن کا مسئلہ مزید نمایاں ہوا ہے اور ترقی پذیر ممالک کی اکثریت اس سے شدید طور پر متاثر ہوئی ہے۔ چانگ جون نے اس ضمن میں اپنی 3 نکاتی تجاویز پیش کیں، جن میں عالمی فوڈ مارکیٹ کے استحکام کے لیے بین الاقوامی برادری کے ہم آہنگ اقدامات، کمزور ممالک کو درپیش مشکلات دور کرنے کے لیے ہنگامی امداد میں اضافہ اور لازمی تبدیلیوں کے ذریعے عالمی فوڈ سسٹم میں لچک کی مضبوطی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں چانگ جون نے مزید کہا کہ ترقی یافتہ ممالک کو تجارتی اور تکنیکی رکاوٹوں کو کم کرنا چاہیے۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، مارکیٹنگ اور صلاحیت کی تعمیر جیسے امور میں مزید مدد فراہم کرنی چاہیے اور عالمی سطح پر اناج کی فراہمی کے لیے ایک مؤثر، کھلے اور منصفانہ نظام کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چانگ جون نے اس بات پر زور دیا کہ آج دنیا کا سب سے بڑا بحران بالادستی اور بین الاقوامی انصاف کو درپیش شدید چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا کو برابری، اشتراکیت، مشترکہ شراکت اور سود مند تعاون پر مبنی حقیقی کثیر الجہتی کی اشد ضرورت ہے۔ 19 تاریخ کو امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کو یوکرین کو $100 ملین کی اضافی فوجی امداد فراہم کرنی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے جاری کردہ بیان کے مطابق بائیڈن کی جانب سے اس مرتبہ یوکرین کو فراہم کی جانے والی فوجی امداد میں 18 ہاؤٹرز، 18 ٹیکٹیکل گاڑیاں اور 3 اینٹی آرٹلری ریڈارز اور دیگر آلات شامل ہیں۔ اگست 2021 کے بعد یہ 10ویں بار ہے کہ بائیڈن نے غیر ملکی امدادی فنڈ کا استعمال کرتے ہوئے براہ راست یوکرین کو ہتھیار اور آلات فراہم کرنے کی منظوری دی۔ روس یوکرین تنازع شروع ہونے کے بعد سے امریکہ تاحال یوکرین کو کل $3.9 بلین کی فوجی امداد فراہم کر چکا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ عملی اقدامات سے بین الاقوامی تعلقات میں استحکام اور مثبت توانائی ڈالیں، صدر شی جن پنگ۔ چین کی میزبانی میں برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس اور پاکستانی وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر چین تشریف لا رہے ہیں، چینی وزارت خارجہ۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔
合国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। मुख्तलिफ सिलसिलों से सच्चा प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग। सुनिए जानिए CPEC राउंड अप में चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पेशरफ्त पर खबरें और तज्जिए। सुनिए चीन की कहानी एक पाकिस्तानी की ज़बानी रेडियो कॉलम में। यहाँ पर मोबाइल्स पे अलर्ट जारी हो जाते हैं कि कल बारिश होनी है या आने वाले दिनों में मजीद बारिशें होनी है। इसके अलावा दिलचस्प गुफ्तगू और आपके ज़ौक़ के लिए मौसीकी के रंग। ये सब कुछ आपके लिए एक ही प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग में, आपके अपने चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियो से मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक ऐसे पाकिस्तानी ज़रई साइंसदान से बात की है जिन्होंने चीन से तालीम हासिल की और वापस पाकिस्तान जाकर उन्होंने इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी की मदद से फसलों की नई इकसाम मुतारिफ़ करवाई हैं, जिसे वसी पैमाने पर सराहा गया है। सो हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान अजनास की पैदावार में कैसे ताउन को फ़रोग़ दिया जा सकता है। इसके अलावा सिलसिला रेडियो कॉलम भी शामिल प्रोग्राम किया जाएगा, मगर सबसे पहले बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। बाखुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो, हाँ मैं देखूं जहाँ जब उस जगह तुम ही हो। ये जहाँ तुम ही हो, वो जहाँ तुम ही हो, इस ज़मीं से फलक के दरमियाँ तुम ही हो, तुम ही हो बेशुबा, तुम ही हो, तुम ही हो मुझ में हाँ, तुम ही हो, तुम ही हो।
वेलकम बैक। जी सामीन, स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, हमारा सिलसिला होता है CPEC राउंड अप। आज के प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान के नौजवान ज़रई साइंसदान डॉक्टर अली रज़ा से बातचीत की है, जिन्होंने इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान में फसलों के नई इकसाम मुतारिफ करवाई हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान अजनास की पैदावार में कैसे ताउन को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो आइए डॉक्टर अली रज़ा की बातचीत सुनते हैं। 3 अरब अवाम के रोशन मुस्तक़बिल की उम्मीद। जोग्राफियाई कुर्बत और रब्त की मजबूत जंजीर। तरक्की और खुशहाली का ख्वाब। बिरादर ममालिक के पायदार ताल्लुकात का आईना। बेमिसाल दोस्ती का शाहकार। ताउन की कड़ी। अजीम मंसूबा। चीन पाक इक्तिसादी राहदारी। समाअत कीजिए चीन पाक इक्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त के हवाले से खबरों, तजज़ियों, तबसीरों और इंटरव्यूज़ पर मबनी प्रोग्राम CPEC राउंड अप, चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। जी डॉक्टर अली रज़ा साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और FM 98 दोस्ती चैनल को वक्त देने का। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि चीन से जदीद ज़राअत की तालीम हासिल करने के बाद आपने पाकिस्तान में कैसे इस तालीम को अप्लाई किए? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया एक बार फिर अपने प्रोग्राम में आने का। तो इसकी इब्तिदा ऐसे हुई कि मैंने अपनी जब PhD की तालीम मुकम्मल की तो मैं चाइना से पाकिस्तान वापस आ गया और मैंने अपनी रिसर्च जारी रखी पाकिस्तान में, जिसमें मैंने पोस्ट डॉक की रिसर्च की और मैंने जो तालीम चाइना में हासिल की फिर उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की पाकिस्तान में, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि पाकिस्तान में मेरी टेक्नोलॉजी कैसा परफॉर्म करेगी। और पाकिस्तान भी उन्हीं मसाइल का शिकार था जिन मसाइल का सामना चाइना कर रहा था। तो सिमिलर किस्म के मसाइल और सिमिलर किस्म की ग्रोइंग कंडीशन की वजह से मैंने अपनी ज़राअत की जो तालीम चाइना में हासिल की उसको एज सच पाकिस्तान में अप्लाई किया और उसके खातिर खा रिजल्ट मुझे अल्लाह की रहमत से मिले। सही। तो डॉक्टर साहब, हमारे सामीन के लिए बताइएगा, आपको सुनने वालों में एक बड़ी तादाद इस वक्त देही इलाकों में भी लोग मौजूद हैं, कि आपने जो जदीद ज़रई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी और दीगर जो ज़रई इख्तरात हैं, इनसे पाकिस्तान में फसलों की क्या नई इकसाम मुतारिफ करवाई हैं? मैं सबसे पहले तो सब सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि उन्हें ये मालूम हो कि मॉडर्न इंटरक्रॉपिंग और जो सदियों से चली आ रही इंटरक्रॉपिंग उसमें फ़र्क क्या है। जो सदियों से चली आ रही इंटरक्रॉपिंग है उस अमल में किसान कोई भी फसल किसी भी फसल के साथ लगा देते थे। ये ऐसा ही है कि आप 2 सेहतमंद आदमियों को एक चावलों की प्लेट दे दें और उन्हें कहें कि आप इससे पेट भरें, तो उससे नतीजा ये निकलेगा कि दोनों का पेट नहीं भरेगा। लेकिन हमारी ये जो नई इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर हमने पूरे साइंस के उसूलों के तहत एक नया सिस्टम बनाया, जिसके अंदर हमने ऐसी फसलों को सिलेक्ट किया जिसमें एक फसल दूसरी फसल को फायदा दे और दोनों की पैदावार बढ़े, लेकिन दोनों पे खर्चा सिर्फ एक फसल का है। तो आपने पूछा कि हमने कौन सी नई अक़साम मुतारिफ करवाई। जब मैं पाकिस्तान चाइना से आया तो मैंने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान 240 अरब रुपए के करीब पैसा खर्च कर रहा है अपना सोयाबीन की इंपोर्ट पे। तो मैंने सबसे पहले सोयाबीन की इंपोर्ट को कम करने के लिए एक नया इंटरक्रॉपिंग सिस्टम पाकिस्तान में टेस्ट किया। उस टेस्ट के बाद मैंने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट की और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है, जिसमें हम मकई के साथ सोयाबीन की काश्त करते हैं और मकई के साथ सोयाबीन की इस तरह काश्त करते हैं कि मकई के पर एकड़ पौधों की तादाद में कमी ना आए और सोयाबीन की हमें एक्स्ट्रा पैदावार मिले। और सोयाबीन जिस जमीन में भी काश्त होती है वो जमीन की जरखेजी को भी बढ़ाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है। इसके साथ साथ अब हम
गंदम के साथ भी सोयाबीन की काश्त कर रहे हैं, जो कि अभी हमारे तजर्बाती स्टेज पे है। फिर हम गंदम के साथ चनों की तजर्बाती काश्त कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने गन्ने के साथ सोयाबीन की काश्त के तजर्बे शुरू कर दिए हैं। और इसके साथ साथ अब हम एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं, जिसमें हम मकई के साथ सोयाबीन भी लगाएंगे, मकई के साथ हम मूंगफली भी लगाएंगे, मकई के साथ हम मटर भी लगाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हम अपने किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजीज दें जिसमें वो एक फसल का खर्च करके नफा ज्यादा ले सकें। सही। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जो माशाल्लाह नौजवान ज़रूरी साइंसदान हैं, अगर यही कोशिशें आपकी जारी रहीं और मज़ीद आपकी वर्क फोर्स बनती गई, तो वो जो हम हमेशा कहा करते हैं पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क तो है, लेकिन हमें जो अजनास हैं इनकी कमी का सामना रहता है, ग़ज़ाई किल्लत का ख़तरा बदस्तूर हम ये महसूस कर सकते हैं। तो इन्हीं जदीद ज़रूरी उसूलों की बदौलत क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान भी अजनास की पैदावार में काफ़ी हद तक खुद कफ़ील हो पाएगा? जी जी बिल्कुल। अगर आप इसके लिए फॉर टेस्ट केस या एग्जाम्पल के तौर पे चाइना को ही देख लें। चाइना अपने मुल्क की तमाम जरूरियात के अजनास जो हैं वो 56% अजनास को इंटरक्रॉपिंग से प्रोड्यूस करता है। यानी कि उसके मुल्क में जितने भी अजनास जो वो खाता है 56% इंटरक्रॉपिंग उन्हें पैदा करके देती हैं। अब वो इंटरक्रॉपिंग में करते क्या है? वो इंटरक्रॉपिंग में इस किस्म की प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं जिसमें वो खाद, स्प्रे, पानी एक फसल का इस्तेमाल करें और फसलें ले ले 2, यानी कि 1 एकड़ से वो 1.5 से 2 एकड़ की पैदावार ले रहे हैं। इसके लिए अभी हमारे मुल्क में ये इंटरक्रॉपिंग सिस्टम नए हैं, हमें कुछ अर्सा लगेगा और आप जैसे दोस्तों की अगर मदद रही तो हमारी इंफॉर्मेशन ये जिस तरह किसानों के पास पहुंचती जाएगी तो वो इन नए तरीके काश्त की तरफ आएंगे और इससे उनकी जमीनों की जरखेजी भी बढ़ेगी और हमारी पैदावार बढ़ेगी। और जब हमारी पैदावार बढ़ेगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जैसा कि आपने कहा कि हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, हमारा मुल्क ये ज़राई मुल्क तो है, लेकिन हमने इसकी ज़राअत के लिए वो कुछ नहीं किया जो दुनिया के जदीद मुल्कों ने किया। और ये अब हमारे ऊपर लाजिम है कि हम नए उसूलों के तहत ज़राअत को खुद भी करें और अपने किसानों तक भी इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं। जी डॉक्टर अली रज़ा साहब, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ सामीन को अच्छी मौसीकी भी सुनवाते हैं। हल्का कर दे, मैं खाली हूँ मुझे भर दे। मैं खुल के आज रो दूँ, मुझे बाहों का तू घर दे। रख ले मुझे पास कहीं हमेशा हमेशा के लिए। मेरे साथ साथ चल तू, मेरी हर खुशी का पल तू, मेरी जिंदगी का हासिल, मेरा आज तू ही कल तू। मेरे साथ साथ चल तू, मेरी हर खुशी का पल तू।
हो हमेशा हमेशा के लिए वेलकम बैक जी सामीन, स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस और बीजिंग स्टूडियो से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तान के नौजवान ज़री साइंसदान डॉक्टर अली रज़ा से बातचीत कर रहे थे, तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत चीन और पाकिस्तान के दरमियान अजनास की पैदावार में कैसे ताउन को फ़रोग़ दिया जा सकता है। FM 98 दोस्ती चैनल, a voice of friendship। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि एक खुशाइंद बात यह है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत जो है इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान ये जो ज़रई शोबे में ताउन है, इसे भी कलीदी अहमियत हासिल हो चुकी है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है और ये बड़ा अहम ताउन है। इस ताउन के तहत चाइना हमें बहुत सी ज्यादा पैदावार देने वाली फसलों के अच्छे बीज दे रहा है, जिसमें वो चावलों के बीज हमें दे रहा है, जिसमें हमें वो मकई के बीज अब देगा, सोयाबीन के बीज भी वो हमें देगा। इसी तरह तेलदार अजनास जैसे कि राया है उसका भी नया बीज देगा हमें। इसी तरह हमारा अब ये जो सी पैक है, हम अपने मुल्क के अंदर जो चाइना ने मेहनत करके नई जदीद टेक्नोलॉजीज बनाई, नए जदीद बीज बनाए जो कि कम खर्च में ज्यादा पैदावार दे सकते हैं, जो कि फसलें अगर हमारी एक फसल 5 माह में तैयार हो रही है तो नए बीजों के इस्तेमाल से हम वही फसल 4 माह में तैयार कर सकते हैं और हमारी पैदावार कम नहीं होगी। तो इस सी पैक के ताउन से पाकिस्तान की बड़ी मदद हो रही है और इसके साथ साथ सी पैक की वजह से चाइना पाकिस्तान के बहुत सारे नौजवानों को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स दे रहा है। उसमें PhD की तालीम है, उसमें पोस्ट डॉक की तालीम है, उसमें मास्टर्स की तालीम है और वो स्कॉलरशिप की अमाउंट इतनी होती है कि बच्चे वहाँ आराम से पढ़ भी सकते हैं और अपने साथ कुछ सेविंग्स भी लेके आ सकते हैं। इसके साथ साथ वो दुनिया की जदीद तरीन इक्विपमेंट, जदीद तरीन आलाजात की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जो कि जब वो वापस पाकिस्तान में आते हैं या आएंगे तो वो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ कि चूँकि चीन में आपने यहाँ पर आपने तालीम हासिल की और फिर जो ज़राअत का शोबा है आपने बगौर ख़ुद ज़ाती मुशाहिदा भी किया, तो मैं अपने सुनने वालों के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि चीन में ज़राअत की क्या ऐसी खूबियाँ हैं कि आज वो 650 अरब किलोग्राम जो है वो अजनास पैदा कर रहे हैं और ख़ुराक में ख़ुद कफ़ील हैं, और यही तजर्बा जो है सी पैक के तहत पाकिस्तान के कैसे काम आ सकता है?
में इसके ऊपर हमें चाइना की बेसिक पॉलिसी पे जाना होगा। चाइना की बेसिक पॉलिसी ये है कि उन्होंने अपने पूरे मुल्क को डिवाइड किया, अपने पूरे मुल्क में ये फैसला कर दिया कि कौन सा इलाका किस फसल को दिया जाएगा। यानी कि अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना ने अपनी सारी कपास की पैदावार शिनजियांग की तरफ शिफ्ट कर दी, क्योंकि शिनजियांग में वो तमाम मौसमी हालात बेहतर हैं जो कपास को चाहिए है। इसी तरह अगर आप उनके शुगर केन की प्रोडक्शन को देखें तो उन्होंने शुगर केन के लिए अपने ग्वांसी एक सूबा है उसको मुख्तस कर दिया कि वहां पे शुगर केन उगाया जाएगा। इसी तरह अगर आप उनकी सोयाबीन की प्रोडक्शन को देखें तो उन्होंने अपने साउथ वेस्ट जो पार्ट है, ये सारे सूबे हैं, वहां पे ये वक्फ कर दिए कि वहां पे सोयाबीन की काश्त को और मकई की काश्त को फरोग दिया जाएगा। तो हमारे मुल्क में सबसे पहले तो हमें ये एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम अपने पूरे मुल्क में एक सर्वे करें। पहले उस सर्वे के बाद हम नताइज अखज़ करें कि कौन सा एरिया किस फसल के लिए बेहतर है, कौन सा एरिया जिस फसल के लिए बेहतर है हम उस एरिया में वही फसल लगाएं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हम मकई और सोयाबीन की काश्त पाकिस्तान में फरवरी के मौसम में देखें, जो कि फरवरी के मौसम में मकई और सोयाबीन से साउथ यानी कि जनूबी पंजाब और सिंध इसके लिए बेहतरीन है इसकी काश्त के लिए। जब हम आते हैं मौसम खिजा में तो मौसम खिजा में जनूबी पंजाब और सिंध मकई सोयाबीन की काश्त के लिए उतने बेहतर नहीं है जितना बेहतर अपर पंजाब है। तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम अपने इलाकों को तकसीम करें, जहां जो इलाका जिस फसल के लिए बेहतर है हम उसके लिए वो इलाका वक्फ करें। उसके बाद हमें चाइना की तरह ये करना पड़ेगा कि हम ऐसे बीज जो गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा नहीं है उन सब बीजों को, उन तमाम जहरमार दवाइयों पे पाबंदी लगा दें। हम सिर्फ और सिर्फ खालिस बीज जो किसानों तक पहुंचे उसकी फरोख्त को फरोग दें। यानी कि हमें अपने मुल्क के अंदर उन तमाम मसाइल या उन तमाम चोर दरवाजों को बंद करना होगा जो बीज में मिलावट करते हैं और जो जहर जो फसलों पे जहर स्प्रे किया जाता है उसमें मिलावट करते हैं। तो इसके बाद आखिरी चीज हमें अपनी मार्केट को बेहतर करना होगा। होता यह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनली रेट ज्यादा होता है, मार्केट के अंदर मिडल मैन जो है वो किसान को सही रेट नहीं देता, जिसकी वजह से उसको हमेशा नुकसान आता है। चाइना में ये चीजें नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट आता है, फिर उस रेट के ऊपर तमाम फसलें खरीदी जाती हैं, उससे कम या ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। सही। तो डॉक्टर साहब ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अब चूँकि सी पैक की तामीर आगे बढ़ रही है, इसमें एक अहम बात जिस जानिब अभी आपने इशारा भी किया वो है ज़राई टेक्नोलॉजी। और ये ज़राई टेक्नोलॉजी इस लिहाज से भी अहम है, एक तो फसलों की ज़्यादा पैदावार और फिर पाकिस्तान में चूँकि फसलों की बड़ी मिकदार ज़ाया भी हो जाती है रवायती तरीके की वजह से, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ज़राई टेक्नोलॉजी का तबादला है सी पैक के तहत ये किस कदर अहम साबित होगा? जिस तरह कि आपने बताया कि हमारी बहुत सारी सब्जियां, हमारे बहुत सारे फल, बहुत सारी फसलें अपनी पूरी शेल्फ लाइफ से पहले ही ज़ाया हो जाती हैं। हमें चाइना से इन टेक्नोलॉजीज के तबादले के लिए भी मजीद मुआहदे करने चाहिए। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि वो कैसे अपने अजनास को लंबे अरसे के लिए स्टोर करते हैं, वो कैसे अपनी सब्जियों को तरोताज़ा रखते हैं एक लंबे अरसे के लिए और फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं। इसके लिए हमें चाइना से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो अपने जदीद जो शेल्फ लाइफ मेंटेन करने वाले यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान में 1-2 लगाए, ताकि उनको देखते हुए फिर प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में आए, उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करे और वो शहर शहर पहुंचे, जिससे हमारी अजनास का ज़िया रुकेगा और हमारी मार्केट प्राइस जो सब्जियात की है, फलों की है, वो बढ़ जाएगी। एक तो चीज ये होगी। उसके साथ साथ ये होगा कि पाकिस्तान जब उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा तो उसके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल की एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा एरिया खुल जाएगा। वो उसके अंदर अपने फूड्स को, वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके लिए जो बुनियादी हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए वो हमें चाइना जैसे मुल्क, क्योंकि वो हमारा एक दोस्त मुल्क है, उसे हासिल करनी चाहिए और अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, आप जैसे जो नौजवान हैं इस वक्त चीन में तालीम भी हासिल कर रहे हैं, आपने जिक्र भी किया, और वो ऐसे नौजवान जो भी आना चाहते हैं चीन तालीम हासिल करने के लिए इसी ज़राअत के शोबे में, तो आपसे पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में उनके लिए क्या ऐसा स्कोप है कि उनकी हौसला अफजाई हो कि वो ज़राअत की जानिब आएँ? ये बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल के मेरे मुताबिक 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कि नौजवान चाइना जरूर जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीखें, वहां पे मॉडर्न नॉलेज सीखें, मॉडर्न लैब्स के अंदर खुद को ट्रेन करें और एक काबिल नौजवान बन के वापस आए। दूसरा ये है कि हमें
पाकिस्तान के अंदर जब कोई नौजवान पीएचडी में दाखिला लेता है तो उसको फंडिंग के मसाइल आते हैं। जब उसने कोई एनालिसिस करना होता है तो उसको ये मसला आता है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के पास उतनी फंडिंग नहीं है कि वो जदीद तरीन उनके एनालिसिस के लिए उसे सपोर्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ों की नई फंडिंग और नई मशीनरी और नई इक्विपमेंट, ये सारा कुछ हमें चाइना और चाइना की यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे जो सबसे अहम बात है कि पाकिस्तानी नौजवानों को चाइना जाते वक्त ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि वो आला तालीम के हुसूल के लिए जा रहे हैं। वो वहाँ जाएं तो वो इतनी मेहनत करें कि वो अपने मुल्क की इज्जत में इजाफा करें, ना कि उधर जाके अपना एक वक्त गुजार के पीएचडी करके आ जाए और फिर वापस आके यहाँ पे एक ब्लेम गेम करें कि हम चाइना से डिग्री करके तो आ गए लेकिन हमारी जॉब नहीं लगी। मैंने जो चीज़ देखी कि चाइना से जो लोग अच्छी तालीमें हासिल करके आए वो पाकिस्तान में भी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे सेटल हुए, इसके साथ साथ उन्हें दुनिया में बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स की ऑफर हुई। अब अगर हम अच्छी तरह वहां नहीं पढ़ेंगे, उनके रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज नहीं करेंगे तो हमारे लिए मसाइल है। लेकिन वहीं पे अगर हम पॉजिटिव अप्रोच से पाकिस्तानी नौजवान जाए कि उनके तमाम रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करें, उनकी टेक्नोलॉजीज को सीखे, वहां अपने उस्तादा से सीखे, वहां यूनिवर्सिटी में लैबमेट से सीखे, तो जब वो वापस आएगा तो उसका पाकिस्तान में भी मुस्तकबिल रोशन होगा और दुनिया में भी उसका मुस्तकबिल रोशन होगा। सही। आखिर में डॉक्टर साहब, चीन का तो आपने जिक्र किया, मैं चाह रहा था कि चूँकि पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़र जामियात हैं जहाँ पर ज़राअत की तालीम दी जा रही है, तो आप क्या तजावीज़ देना चाहेंगे कि उन्हें क्या जदीद तर्ज तालीम अपनाने की ज़रूरत है? क्योंकि अब मैं खुद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मुंसलिक हूँ, तो मुझे जो मेन शॉर्ट कमिंग्स लगती हैं हमारे सिस्टम में वो ये है कि एक तो हमें अपना जो इस वक्त पढ़ाया जा रहा है करिकुलम उसको चेंज करना होगा। हमें अपने करिकुलम में तमाम नए सब्जेक्ट्स को ऐड करना होगा जो दुनिया पढ़ रही है। हमें अपने सब्जेक्ट्स को अपडेट करना होगा, हमें वो तमाम टॉपिक्स ऐड करने होंगे जिनसे हमारा नौजवान एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए तैयार हो सकता है। उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि वो दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ मुआहदे करें। अगर आप चाइना को स्टडी करें तो हर गुजरते दिन के साथ उसने इकोनॉमी में, उसने टेक्नोलॉजी में, उसने साइंस में तरक्की की। हुआ ये कि उनके नौजवान जो उन मुल्कों में तालीम के लिए गए, जब उन सब की वापसी शुरू हुई तो वो इतने बेहतरीन नौजवान तैयार हुए थे कि उन्होंने वापस आते ही साइंस की दुनिया में इनोवेशंस की, यानी कि उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजीज इजाद की, नए नए सिस्टम बनाए, नए नए इक्विपमेंट बनाए। उन तमाम नई चीजों ने पूरी दुनिया में उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दी, जिसकी वजह से उनकी इंपोर्ट्स कम होना शुरू हो गई और एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई। और आज चाइना इतनी बड़ी ताकत बन गया है कि उसका और अमेरिका का 355 अरब डॉलर का डिफरेंस है, यानी कि चाइना 355 अरब डॉलर सरप्लस पे जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट जो इस साल लास्ट मंथ तक हुई वो सिर्फ 26 अरब डॉलर हुई। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े तो हमें अपने तालीमी करिकुलम को अपडेट करना होगा और अपने नौजवानों को दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों में भेजना होगा और उन्हें ये बाउंड करना होगा कि जब वो वहां से तालीम हासिल करें तो वो वापस पाकिस्तान आके पाकिस्तान को सर्व करें। यहाँ पर एक और सबसे अहम चीज वो ये कि जब पाकिस्तानी नौजवान बाहर से बेहतरीन तालीम हासिल करके वापस पाकिस्तान में लौटता है तो उसको जॉब के बड़े इशू होते हैं। होना तो ये चाहिए कि उसकी तालीमी काबिलियत के लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिस्टम बनाए कि वो जैसे ही वापस आए तो उसको एक बेहतरीन इदारे में एक रिस्पेक्टफुल जॉब दी जाए ताकि वो इस मुल्क को छोड़ के ना जाए। मैं यहाँ पे अपनी बात को खत्म करूंगा और एक अभी रिसेंट एक डॉक्टर की बात शेयर करना चाहूंगा ताकि वो बात तमाम सामीन और पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट कॉर्नर्स तक पहुंचे। मेरे एक सीनियर डॉक्टर जमील, उन्होंने पीएचडी मुकम्मल की मकाओ यूनिवर्सिटी से और वो 2 साल तक पाकिस्तान में धक्के खाते रहे, अप्लाई करते रहे, उन्हें किसी यूनिवर्सिटी ने जॉब न की, जबकि उनके रिसर्च मुकाले दुनिया के टॉप जर्नल्स में पब्लिश हुए और कल उन्हें वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट कर लिया। जब मैंने उनकी फेसबुक पे पोस्ट देखी तो मैंने बड़े दुख से उन्हें ये कहा कि मैं खुश हूँ कि आप कामयाब हुए, लेकिन मैं खुश नहीं भी हूँ कि पाकिस्तान ने अपना एक और ज़हीन बेटा खो दिया। हमें अपने इन ब्रेन ड्रेन को रोकना होगा, अपने ज़हीन लोगों को इस मुल्क में वापस रखना होगा, वो इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका और मैं आपकी तमाम टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आप तक अपनी बातें पहुँचा सकूँ। हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अली रज़ा साहब कि आपने अपने कीमती वक्त दिया। बेहद शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी।
जी सामीन, हमारा सिलसिला होता है रेडियो कॉलम। आज इस हवाले से हमारी उर्दू सर्विस के साथ ही सारा अफजल की खुसूसी तहरीर सुनते हैं। आइए चीन की सैर करते हैं। मगर कैसे? ऐसे बीजिंग में कहीं भी चले जाएं, किसी दीवार पर कोई इश्तिहार लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। सुनिए चीन का आंखों देखा हाल एक पाकिस्तानी की जुबानी। रेडियो कॉलम में तो जो ही बारिश खत्म होती है तो पानी आपको नजर नहीं आता, पानी गायब हो जाता है। रेडियो कॉलम आपके लिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से। लाइफ स्किल्स को निखारना वक्त की अहम ज़रूरत है। चीन की वजारत तालीम की तरफ से जारी करदा नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस साल के मौसम ख़ज़ां के सेमेस्टर से चीन के प्राइमरी,
और सेकेंडरी स्कूल्स के निसाब में अमली मुशक्क़त की महारतों की तालीम को शामिल किया जाएगा। घरेलू काम जैसे सफाई सुथराई, खाना पकाना, चीज़ों को तरतीब से तंजीम से रखना और ज़ख़ीरा करना, ज़रई, मैन्युफैक्चरिंग और खिदमात के शोबों तक की महारतें तलबा के निसाब में शामिल की जाएंगी, जिनका मकसद तलबा को तालीम के साथ साथ हाथ से करने वाले कामों में हिस्सा लेने की तरगीब देना और इनके किरदार के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करना है। ये कोर्सेज मरहलावार होंगे। मिसाल के तौर पर खाने पकाने को लें तो पहली और दूसरी जमात के तलबा को सब्जियां धोने और इन्हें तैयार करने जैसे बुनियादी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दी जाएगी। तीसरी और चौथी जमात में उन्हें चीन में खाए जाने वाले वो खाने सिखाए जाएंगे जो स्टीम से बनाए जाते हैं, जैसे कि उबली हुई सब्जियां, बन और डम्पलिंग्स। पांचवी और छठी जमात के बच्चे 2 से 3 खाने पकाना सीखेंगे, आसान खाने जैसे कि टमाटरों और अंडे का सालन बनाना। गाइडलाइंस के मुताबिक कोर्सेज को हर हफ्ते औसतन 1 घंटे की क्लास से कम नहीं होना चाहिए और तालिब इल्म की कारकर्दगी को कसीर जहती नुक्ता नज़र से जांचना होगा। इससे कबल मुल्क ने लाजमी तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए ज़रूरत से ज़्यादा होमवर्क और ऑफ कैंपस ट्यूशन के बोझ को कम करने के लिए भी रहनुमा उसूलों का एक सेट मुतारिफ करवाया था। चीन का 9 साला मुफ्त लाजमी तालीमी निज़ाम प्राइमरी और जूनियर मिडिल स्कूल्स का अहाता करता है, लेकिन इसके साथ साथ चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पेशा-वराना तालीम का निज़ाम भी बनाया है, जिसमें 11,300 पेशा-वराना स्कूल्स में 30.88 मिलियन तलबा दाखिल होते हैं और सालाना 10 मिलियन ग्रेजुएट्स यहाँ से निकलते हैं। चीन ने इसी पेशा-वराना तालीम का नजरसानी शुदा कानून 1 मई से नाफिज कर दिया है। इसके तहत पेशा-वराना स्कूल से फारिग तहसील अफराद के लिए मुलाजमत के मसावी मौके फराहम करने को फरोग दिया जाएगा और पेशा-वराना तालीम के मयार को मजीद बेहतर किया जाएगा। 1996 में इसे अपनाया गया था और पहली बार इस कानून पर नजरसानी की गई है। इस कानून में ये शर्त रखी गई है कि पेशा-वराना तालीम आम तालीम की तरह अहम है और पेशा-वराना स्कूल्स के फारिग तहसील अफराद को कैरियर के यकसा मौके से फायदा उठाना चाहिए। इससे पेशा-वराना तालीम में एंटरप्राइजेस की शिरकत की भी हौसला अफजाई होती है और इदारों से मुतालबा भी किया जाता है कि वो मुलाजमीन की खिदमात हासिल करते वक्त भर्ती की एक अहम शर्त तकनीकी महारत को सही तरह से समझे। नजरसानी के मुताबिक सनती तरतीब की जरूरत की बुनियाद पर चीन को आला दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेशा-वराना तालीम के नए बड़े इदारों को भरपूर तरीके से तैयार करना होगा। चीन ने कई सालों में पॉलिसी इकदामात का एक सिलसिला मुतारिफ करवाया है, जिसने तरमीम शुदा पेशा-वराना तालीम के कानून को नाफिज करने की एक मजबूत बुनियाद रखी है। पेशा-वराना तालीम को आम तालीम के साथ मसावी करने का मतलब है कि यहाँ से फारिग तहसील अफराद को भी के इन अफराद की तालीम का दर्जा भी दीगर तालीमी दर्जों के बराबर ही माना जाएगा और यही लाइफ स्किल्स, अमली मुशक्कत और पेशा-वराना तरबियत है जो इस वक्त चीन को दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में तेजी से नुमाया मकाम पर ले जा चुकी है। आप सुन रहे हैं दोस्ती FM 98। जी सामीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्टूडियो बेजिंग का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के हवाले से आप हमें ईमेल कर सकते हैं urd@cri.com.cn पर। मज़ीद ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.cri.cn। शाहिद अफराज ख़ान को CRI के बेजिंग स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
छाती मार रहा तेनू खबर नहीं जसवीर तेरे नी नखरे कंज सहार रहा गल चढ़ली पैणिया वाले ने गल चढ़ली पैणिया वाले ने पर दिल विच वसना आउंदा नी बाबर के तेनू जी करदा की करिए नचना आउंदा बाबर के तेनू जी करदा की करिए नचना आउंदा बाबर के तेनू जी करदा की करिए नचना आउंदा नी बाबर के तेनू जी करदा की करिए नचना आउंदा नी चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और एफएम पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर, इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ। चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालात हाज़रा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।